how a fresh and young and hydrated leaf in nature looks like, and this is how a dry and old and dead leaf looks like. So right now we are, since I'm a doctor, so I'll start about little bit health related topic. And so we all know that we are aging. Everybody is aging. Right now I'm 38 years old, and you all are must be 20, 25 years, less than that, 20, less than 20, 18 years maybe. So we all are aging every single day, and aging depends on what we eat, what we do to our daily lives. But if you get to the crux of it, we are in an era of technology where we are not sure at all to be scared of cancer or cancer related diseases, because cancer research has gone way ahead. There is lots of newer technologies, newer research which are claiming that, which are not just claiming, which are very potential cures for cancer, except in the last stage of cancer or stage 4 of cancer, which is still very difficult to treat. But apart from that, all other stages of cancer are very, very curable. So we are in a stage of research now, which cancer research was there 50 years back. 50 years back कैंसर का नाम सुन के लोग एकदम डर जाते थे, है ना, कि कैंसर हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता. बट कैंसर रिसर्च बहुत आगे बढ़ चुकी है. अब जो रिसर्च चल रही है वो चल रही है एजिंग पे. जब इंसान पैदा होता है, जब पहले आए, तो हमारा मेन गोल लाइफ में क्या है? खुश रहना है, हेल्दी रहना है और लंबा जीना है. कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता. एनीबडी वांट्स टू डाई अर्ली हियर? नो, राइट? एवरीबडी वांट्स टू लिव लॉन्ग. बट लिविंग लॉन्ग इज नॉट द की, लिविंग हेल्दी इज द की, है ना. मतलब मेरा प्लान, और मैं तो जब सबको यही बोलता हूँ कि जब तक हेल्दी लेने का क्या मतलब है कि आप आपके लाइफ के लास्ट 10 ईयर्स में क्या करना चाहते हैं, वो आपको अभी से डिसाइड करना है. जो भी आपको पसंद है अभी, मतलब अभी तो आप लोग कॉलेज में हो, स्कूल में हो. व्हेन यू गेट इनटू योर लाइफ एंड यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू लाइक, देन यू हैव टू मेक श्योर टू मेक अ लिस्ट that what you want to do in the last 10 years of your life. You have to keep your body, your mind, your overall health that much that you can do all these things in the last 10 years of your life. For example, I am a surgeon, I am a laparoscopic surgeon, I am a passionate scuba diver, so I love to dive in the ocean and connect to the underneath ocean life below it, the fishes, the corals. Then I am a bird photographer, bird watcher, so I would like to do bird watching during the last 10 years of my life. I like to connect with nature. I am a fitness enthusiast, so I want to keep running in the last 10 years of my life. So if you try and live life with that purpose, then you will automatically be healthy and consume good food, nutrition and overall health. So we age. So right now we are coming back to the topic. We are aging every day, and now big people like David Sinclair quotes in his book that aging is a disease. Aging is a disease which can be reversed, which can be stopped. So aging is also a disease, and we age. If you go to the science of it, why we are aging, a newborn is with 78% water. A newborn, when he is born, 78% उसके शरीर में पानी होता है. और जब वो 60 years का हो जाता है, any person turning 60, tentatively the body percentage is 60%. So it is very evident that we are aging because we are chronically dehydrating. Now here we come to what is cellular hydration. So for example, आपको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत ढेर सारे प्रोसेसेस होते हैं. जैसे अभी आप लोग लिसनिंग कर रहे हैं, अभी आप उसके बाद आप डाइजेशन होता है, थिंकिंग होती है ना, हार्ट बीट हो रही है. तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर वर्किंग इन आवर बॉडी. ठीक है. इसी तरह से हमारे बॉडी में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं. हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो कि कॉन्स्टेंटली वायरस बैक्टीरिया है आसपास हमारे, जो कि हमारे बॉडी में घुसता है, लेकिन वी आर फाइटिंग, द बॉडी इज फाइटिंग. समझ आ रहा है सबको? तो बॉडी इज फाइटिंग. सो इसलिए हम इमेजिन करते हैं कि हमारे जितने सेल है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितने सेल होते हैं? किसी को पता है कितने सेल होते हैं? हमारी बॉडी में एज एन एवरेज अडल्ट 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. ट्रिलियन सेल्स, 37 ट्रिलियन सेल्स. सो इमेजिन, आपको ये कर रहा है कि जितने सेल है हमारे बॉडी में, कुछ हार्ट के सेल है, कुछ ब्रेन के सेल है, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल है. ये जो है ये एक बैटरी है. सारे सेल एक बैटरी है, मान के चलिए. इमेजिन, एक एनालॉजी दे रहा हूँ मैं आपको. वो बैटरी है, और वो बैटरी हमारा बेस्ट परफॉर्म करेगा जब हमारे अंदर 100% वाटर होगा हर सेल में. जो मैंने अभी शुरू में फोटो दिखाई थी एक सेल की, तो अगर ये क्या हो गया बेटा? हाँ, इट विल परफॉर्म बेस्ट व्हेन 100% ऑफ वाटर इन देयर इन आवर सेल्स. एंड जितना प्रोसेस अगर आप सेलुलर लेवल पे देखोगे,
तो आप थिंकिंग कर रहे हो या जो भी प्रोसेस कर रहे हो, सेल लेवल पे पानी या तो हमारे सेल के अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, ये हमारा सेलुलर प्रोसेस है। तो इसलिए ये अगर हमारा बॉडी का सेल का परसेंटेज 100% रहेंगे, जो कि हम करेक्ट पानी पीने से, खाना खाने से मेंटेन कर सकते हैं, तो हम ओवरऑल हेल्दी रहेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना पानी पीना चाहिए। दिस इज द कॉमन क्वेश्चन, राइट? कितना पानी पीना चाहिए आप बताइए। हाँ, माइक्स है क्या मैम सबके पास? स्टिक की जरूरत नहीं है, स्टिक की कोई जरूरत नहीं, मैं उससे कम ही रिलेटेड बोलूँ। सो बताओ बच्चों, कितना, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक, या व्हेन डू वी ड्रिंक वाटर, हम पानी कब पीते हैं? चलो चलो छोड़ो, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो पानी हम वी ऑल नो कि पानी पीना जरूरी है ना। 7 to 8 लीटर्स, वेरी गुड आंसर बेटा। सो नाउ कमिंग टू द साइंटिफिक बिहाइंड कि कितना पानी पीना चाहिए। पहली चीज़, 7 to 8 लीटर या 7 to 10 ग्लास या कोई भी एक, हम हर बॉडी अलग है और हम किसी को एक पिन पॉइंट नहीं बता सकते कि कितना पानी पीना चाहिए। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि व्यूअर, पानी को इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हम 2 समय पानी को इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में, जो हम रोज़ करते हैं। पानी पीते हैं और पानी से नहाते हैं। वी ऑल बेथ विद वाटर, वी ड्रिंक वाटर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनकॉन्शियसली पीते हैं, हम सबकॉन्शियसली पीते हैं। स्कूल आना होता है, फटाफट जल्दी से नहा लेते हैं और पानी तो पता नहीं पीते हैं या नहीं पीते, या पीते भी है तो ध्यान नहीं देते, पहली चीज़। तो पानी हम कब पीते हैं? जब हमको प्यास लगती है, करेक्ट। सब लोग पानी तब पीते हैं जब प्यास लगती है। लेकिन अगर साइंटिफिक जाओगे तो हमको प्यास कब लगती है बॉडी में, यानी कि हमारी ब्लड में। आवर ब्लड हैज़ 80% वाटर, या और लेकिन प्यास कब लगती है? जब वो 80% पानी 70% हो जाता है, कम हो जाता है बॉडी ब्लड में, और जो ब्लड में सॉल्ट होता है, सोडियम, वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। वो जाके ब्रेन में हाइपोथैलेमस को सिम्टम देता है कि ब्लड में पानी कम हो रहा है। तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि किडनी को बोलता है कि बहुत पानी की कमी हो रही है, पानी बचाना है। एंड फिर उस सारे सिस्टम से हमको प्यास लगती है। तो इफ़ यू थिंक एट सेलुलर लेवल, जब तक हमको प्यास लगती है तब तक पानी बहुत कम हो चुका होता है एट सेलुलर लेवल। आर सिस्टम्स, आर इम्यून सिस्टम, आर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, आर कॉग्निटिव, यानी कि हमारा ब्रेन फंक्शन, डाइजेशन, सब 100% काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा सेलुलर डिहाइड्रेशन हो चुका है। सेल्स के अंदर ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो पानी, नया कंसेप्ट ये है कि, और आयुर्वेदा भी ये चीज़ सपोर्ट करता है कि पानी कब पीना चाहिए? जब हमको इतना पानी पीना चाहिए, चाहे 7 to 8 लीटर हो, जैसे एक बच्चे ने कहा, चाहे 5 to 6 लीटर हो, चाहे 10 to 12 लीटर्स हो, हमको पानी लगातार दिन भर में पीते रहना चाहिए बिना प्यास लगे। तो आइडियली हमको कभी प्यास लगने का सेंसेशन हम भूल जाना चाहिए। वी शुड नेवर फील थर्स्टी। द आइडियल गोल ऑफ ड्रिंकिंग राइट अमाउंट ऑफ वाटर इज नेवर फील थर्स्टी इन लाइफ। अब वो अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अगर मैं रोज़ सुबह 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा प्यास लगेगी। अगर हम गर्म एरिया में रह रहे हैं तो ज़्यादा प्यास लगेगी, अगर ठंडी का मौसम है तो कम प्यास लगेगी। तो वो हर बॉडी का चेंज होता है। अगर हम एज ज़्यादा है तो कम प्यास लगेगी। अगर हमारे को कोई बीमारियां हैं, आपकी मम्मी पापा को कोई दवा खाते हैं, तो उस हिसाब से चेंज हो सकता है। तो और सेकंड थिंग, नंबर 1 थिंग, कितना पानी पीना चाहिए? नंबर 1 थिंग कि हमको पानी उतना पीना चाहिए कि प्यास कभी ना लगे। अपनी बॉटल लेके चलिए और अपनी बॉटल पीते रहना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमारी ह्यूमन बॉडी ने इतना हाइड्रेशन गेज सिस्टम दिया है, हमारा यूरिन का कलर देखना होना चाहिए, की आदत होनी चाहिए। और वो हमारा खुद का हाइड्रेशन सिस्टम है, हमारा बॉडी का सिस्टम है, जिससे पता चलता है कि हम हाइड्रेटेड प्रॉपरली है कि नहीं है। यूरिन का कलर हमारा वाइटिश या पानी जैसा या बहुत ही फेंट येलो होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देना है। अब यहाँ बहुत ढेर सारे गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हम लोग नॉर्मली ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड वॉशरूम्स, अच्छे वॉशरूम नहीं होते, तो लड़के और लड़कियाँ दोनों, और स्कूल में पढ़ाई भी करनी होती है, तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो पानी कम पियो। करते हैं कि नहीं? ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग, करते हैं कि नहीं करते? सच्ची बताओ, करते हैं ना? तो वो बहुत ख़राब कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ आप। तो पानी लेना है और अपनी बॉटल अपने साथ हर हालत में रखनी है, एवरी सिंगल डे रखनी है। और ये बॉटल मेरे साथ ओटी के अंदर भी जाती है, मैं कोई 200 किलोमीटर दूर या कोई पहाड़ पे चढ़ता हूँ तो भी मेरे साथ जाती है, मैं कहीं पानी के अंदर बोट से ओशन के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे भी मेरे साथ ये बॉटल जाती है। तो वो पानी आप, और जैसे मैंने बताया आजकल अनहाइजीनिक वॉशरूम्स के ऑल्टरनेटिव में मतलब सैनिटाइजिंग स्प्रेज हैं,
पी बडीज़ हैं स्पेशली लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव निकल जाता है, बट पानी हमको तो भी पीना है, ये नहीं सोचना है। तो आज से ट्राई करना है कि पानी हमको पीना है, बिना सोचे कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, 5 मिनट 2 मिनट का क्लास मिस हो जाएगा या अच्छा वॉशरूम नहीं है, ये सब नहीं सोचना है, बिकॉज यू आर हार्मिंग योर हेल्थ इन मैटर्स विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ. So you have to keep on drinking water. And now मतलब dehydration is linked to everything. Dehydration साइंस में हमने पढ़ा, हमने साइंस में मैंने कई बुक्स में पढ़ा कि सेलुलर डिहाइड्रेशन, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उस सेलुलर डिहाइड्रेशन जो बहुत सारे समय से हम लोग को है, मेरे को भी हो सकता है, बहुत लोगों को है, कि पानी में जितना हमको 100% चाहिए पानी उतना हम नहीं पी रहे हैं. तो वो सेलुलर डिहाइड्रेशन इज द कॉज ऑफ कैंसर, cause of hypertension. It is the scientific cause of it. So अगर आप मतलब सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप पानी के बारे में अवेयर हो जाए और पानी इतना पीते रहे तो हमारे हर बॉडी में ऑन्कोजीन्स होते हैं या रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं. कैंसर क्यों होता है? कैंसर क्यों होता है? क्योंकि हम एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, स्मोक है या अलग अलग टॉक्सिन्स है जो कि हमको हमारे डीएनए को हर्ट करते हैं और डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं, और उससे फिर कुछ सेल है जो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होने लगते हैं जो कि कैंसर है. तो उसको ठीक करने का मैकेनिज्म एवरी बॉडी हैज दिस मैकेनिज्म ऑफ रिपेयरिंग आर सो दैट वी डोंट गेट कैंसर, बट प्रोवाइडेड वी लेट इट फंक्शन एट 100% कैपेसिटी. सो अगर आप पानी अच्छे से पियोगे, और हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं होता है, अच्छा खाना खाना होता है, और वो लार्जली अ प्लांट बेस्ड डाइट भी होता है.